So, so in the previous class, we have discussed about Lorentz force, and today we will discuss force acting on a current carrying conductor placed in an magnetic field. Force, this is our topic, force acting on a current carrying conductor placed in a magnetic field. Your magnetic field may be uniform or non-uniform magnetic field. Uniform magnetic field and non-uniform magnetic field. So first we will discuss for uniform magnetic field and then we will discuss for non-uniform magnetic field. Uniform magnetic field, magnetic field is same at all point in a given रीजन. मतलब जब ये रीजन है कोई, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या होगा, सेम होगा. हर पॉइंट मैग्नेटिक क्या होगा, सेम होगा. एंड दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर. एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक मींस मैग्नेटिक फील्ड at different point in a region is different. अगर ये रीजन है बाबू, तो यहाँ पर मैग्नेटिक मतलब पॉइंट ए और यहाँ पर पॉइंट बी है, तो बी ए नॉट इक्वल टू बी बी. इन दोनों का मैग्नेटिक अलग होगा. अगर यहाँ पॉइंट ए है और यहाँ पॉइंट बी है बाबू, तो बी ए इक्वल टू बी डी, यानी दोनों पॉइंट पे वैल्यू क्या होगा, सेम होगा. यहाँ पर सेम नहीं होगा. सो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म रीजन and this is the uniform region. Distribution of magnetic field is uniform over here and distribution of magnetic field is non-uniform over here. So if there is a magnetic field like this is a magnetic field, clear, and this is uniform. So uniform is parallel lines. Uniform is parallel lines. If lines are parallel, the field is uniform. So this is a uniform magnetic field and there is a current carrying conductor in the magnetic field. So this is the conductor and current is carrying some current, and this is the magnetic field and this is the direction of current. So what will be the force acting on the conductor? We have to find the expression. Clear. अगर मैग्नेटिक फील्ड है उसमें कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखोगे, उस पर फोर्स लगेगा. फोर्स का वैल्यू क्या होगा, किस टाइप का नेचर होगा, ये हम डिस्कस करेंगे. तो लिखो पहले इसको. So force on uniform magnetic, force on a current carrying conductor placed in a uniform magnetic field. Clear. पहले देख रहे हैं अपन ये. So this is a magnetic field B. Clear. Magnetic and magnitude is B. Clear. And there is a conductor in the magnetic field. This is the conductor. And current flowing in the conductor in this direction. So if there is a magnetic field and there is a charge Q placed in a magnetic field and this is moving in this direction. So this is the velocity vector and Q is positive. So F will be equal to Q V cross B. Clear? Clear, and this can be written as clear. So Q V sine of theta and direction will be what? Direction will be inward. Clear. This is the Lorentz force. And if there is a other charge Q and this is minus Q, negative charge moving in the same direction with velocity, then force will be equal to F is equal to minus Q V cross B and this is equal to Q V B sin of theta and डायरेक्शन की करोगे बाबू, हाँ
क्योंकि क्यू बीबी का डायरेक्शन क्या है, अंदर है, तो माइनस क्यू बीबी का डायरेक्शन क्या होगा, बाहर, क्लियर, बाहर होगा। या सिंपली सी बात है, अगर नेगेटिव चार्ज है अंदर इज मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड, उसके डायरेक्शन फाइंड करना है, तो पहले मान लो कि पॉजिटिव चार्ज मान लो अपने तरीके से, और उसका डायरेक्शन फाइंड कर लो, उसके अपोजिट क्या हो जाएगा, नेगेटिव फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन हो जाएगा। इज दैट ओके? सो इफ दिस इज द inward, this is the direction of force acting on positive charge, the direction of force acting on negative charge will be opposite to this, clear? तो कभी भी अगर नेगेटिव चार्ज है और उस पर फोर्स कितना लगेगा फाइंड करना है, तो कुछ नहीं करना, जस्ट रिप्लेस दैट नेगेटिव चार्ज विद ए पॉजिटिव चार्ज मूविंग इन सेम डायरेक्शन, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट चार्ज एंड टेक द अपोजिट डायरेक्शन फॉर नेगेटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज पे इधर फोर्स लगेगा तो जस्ट नेगेटिव चार्ज पे उल्टा फोर्स लगेगा, अगर पॉजिटिव चार्ज पे इधर फोर्स लगेगा तो नेगेटिव चार्ज पे जस्ट उल्टा फोर्स लगेगा। इधर ओके, इधर ओके, सो क्या होगा बाबू, आउटवर्ड, आउटवर्ड। सो सिमिलर, if this magnetic field and there is a current carrying conductor in the magnetic field, there is a current carrying conductor in the magnetic field, means current is flowing through the conductor, and you know current is motion of charge particle, current is motion of charge particle. So this is the wire and there is some current flowing through the wire, and this wire is in the magnetic field, means current is flowing through the wire, means charge particles are moving in the wire na, charge particles are moving in the wire, and since charge particles are moving in the wire and your wire is in the magnetic field, means your charge particles are moving in the wire, and your wire is in the magnetic field, means your charge particles are in the magnetic field. And if a charge particle is in the magnetic field and that is moving, means there must be some force acting on the charge particle, which is the Lorentz force or magnetic force. तो ये बाबू कंडक्टर ये मैग्नेटिक फील्ड में है, एंड थ्रू दिस कंडक्टर करंट इज फ्लोइंग, एंड करंट इज बेसिकली मोशन ऑफ चार्ज, यानी कि इस वायर में चार्ज मोशन कर रहे हैं, यानी कि ये वायर मैग्नेटिक फील्ड में है तो चार्ज भी क्या है बाबू, मैग्नेटिक फील्ड में, और वो भी मोशन कर रहा है, इसका मतलब उसको फोर्स लगेगा ना। तो किसी तरह अगर आप इनमें चार्ज का अमाउंट फाइंड करें कि इस वायर में कितने चार्ज है टोटल, क्लियर, और उन पे फोर्स फाइंड कर ले, देन दैट फोर्स विल बी इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर ना। मान लो कि ये चार्ज पार्टिकल से मिलकर के बना है, तो चार्ज पार्टिकल में जितना फोर्स लगेगा वही क्या होगा, इस वायर पे फोर्स लगेगा ना। सिनारियो समझ रहे हो बाबू तुम लोग? मान लो कि ये एटम मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, एक एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन है, वो मोशन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वही किस पे लगेगा, फोर्स एटम पे, एटम पे जो फोर्स लगेगा वही किस पे फोर्स लगेगा, वायर पर, बिकॉज़ वायर इज मेड अप बाय एटम ना, एंड योर एटम इज मेड अप बाय चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। सो इफ सम फोर्स is acting on the electron and proton, means some force is acting on the atom, and if force is acting on the atom, your force is acting on the wire, क्लियर? क्योंकि वायर एटम से मिलकर के बना है, एटम इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बना है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, इसका मतलब एटम पे फोर्स लग रहा है, एटम पे फोर्स लग रहा है, इसका मतलब वायर पे फोर्स लग रहा है। इधर ओके? तो इस कंडक्टिंग वायर का फोर्स फाइंड करना है, तो पहले टोटल नंबर ऑफ चार्ज फाइंड करो, उस पर कितना फोर्स लगेगा वो फाइंड करो, एंड दैट विल बी इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग वायर। इधर ओके? क्लियर? सो व्हाट करंट इज मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, एंड इफ एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इज डायरेक्शन ऑफ current is in the motion of positive charge, and direction of current is in the motion of negative charge. Direction of current is in the motion of positive charge, and direction of current is in the opposite direction of negative charge. Direction of current is in the opposite direction of motion of negative charge. इसका मतलब अगर इधर प्रोटॉन जा रहा है बाबू, तो करंट इधर जाएगा, इधर जाएगा, और इधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है बाबू, तो करंट इधर जाएगा, इधर जाएगा। इधर ओके? इधर प्रोटॉन, इधर करंट, इधर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इधर करंट। इसका मतलब ये होगा कि करंट इज फ्लोइंग इन दिस वायर, मींस यू कैन अज्यूम दैट करंट इज फ्लोइंग इन दिस वायर इन दिस डायरेक्शन, करंट इज फ्लोइंग इन दिस वायर इन दिस डायरेक्शन, so you can assume that your proton is flowing in this direction or electron is flowing in this direction. choice is yours. करंट इधर जा रहा है तो assume कर लो कि प्रोटॉन इधर जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, या नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है। क्लियर? कैलकुलेशन सेम आएगा, रिजल्ट सेम आएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है तो फोर्स
इधर लगेगा, मान लो पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है तो फोर्स इधर लगेगा, तो नेगेटिव चार्ज इधर तो फोर्स किधर लगेगा, इधर ही लगेगा ना यार। क्लियर। मान लो कि इधर प्रोटॉन जा रहा है तो फोर्स इधर लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर जाता तो फोर्स किधर लगता, इधर लगता ना, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा तब फोर्स किधर लगेगा, इधर ही लगेगा ना यार। समझ रहे हो कि नहीं तुम लोग? क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज इधर है, फोर्स इधर है, तो अगर नेगेटिव चार्ज इधर तो फोर्स किधर होगा, उल्टा होगा। तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन को भी चेंज कर दिया। क्लियर। तो इस वायर में करंट इधर जा रहा है, इस वायर ये समझना जरूरी है, ये समझना जरूरी है। मैंने बताया था कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अगर इधर फोर्स लगेगा, तो नेगेटिव चार्ज होगा तो इधर फोर्स लगेगा। उसके उल्टा, इफ दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, अगर इधर प्रोटॉन मोशन कर रहा है तो फोर्स मान लो कंट्रोल इधर लगेगा, तो अगर सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा तो फोर्स किधर लगेगा, उसके उल्टा ना। तो अब हमने क्या कर दिया कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को चेंज कर दिया, तो उसके क्या हो जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज होगा। तो अब इधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, फोर्स इधर लगा, तो इधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो किधर लगेगा, फोर्स इधर। इसका मतलब ये कि अगर इधर प्रोटॉन जा रहा है और इधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, फोर्स क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। आ रही है बात समझ। और इधर प्रोटॉन जा रहा है और इधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तब भी करंट डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा ना यार। बात समझ आ रही है ना? इधर ओके। तो ये करंट इधर जा रहा है, इसका मतलब प्रोटॉन इधर जा रहा है या इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो क्लियर। तो अगर इलेक्ट्रॉन की वजह से फोर्स फाइंड करना है या प्रोटॉन की वजह से फोर्स फाइंड करना, फोर्स विल बी सेम। क्लियर। तो हम क्या करेंगे कि हम पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करके और फोर्स फाइंड कर लेंगे। क्लियर। और सारा काम हो जाएगा। ठीक है। आई बस मैं लिखो, फिर आगे करवाता हूं। This is magnetic field and this is your current carrying conductor. Current is I. So let us assume positive charge is flowing. Let us assume proton is flowing in charge. Assume करो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो प्रोटॉन इधर जाएगा इधर. So let us assume proton is moving in this direction. Clear? So direction of current and direction of motion of proton is same. इधर डायरेक्शन जा रहा है, इधर प्रोटॉन जा रहा है. And since current is flowing in the wire, means there you have applied some battery, na? You have applied some battery, and if you are applying some battery, you are applying some electric field, and if there is a charge particle in the electric field, the force, the velocity of the charge particle will call the drift velocity, ना? तो मान लो प्रोटॉन इधर जा रहा है, तो उनका वेलोसिटी क्या है, v है. तो this is the drift velocity of proton. Clear? This is the drift velocity of proton, and L is the length of wire. L is the length of wire. Clear? And A is the area of. देखो बाबू, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, प्रोटॉन नहीं कर रहा है. वी आर एज्यूमिंग कि अगर प्रोटॉन इधर जा, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो प्रोटॉन इधर जा रहा है. ये वेलोसिटी प्रोटॉन का है, एक्चुअल वेलोसिटी प्रोटॉन का नहीं है. प्रोटॉन इज इन द न्यूक्लियस, ना दैट इज स्टेशनरी. हमने एज्यूम किया दिस इज जस्ट ए जंक्शन. क्लियर? नहीं तो फिर Vd का फॉर्मूला क्या होता है, Vd इक्वल टू E/m इनटू टॉ. तो यहाँ क्या होगा, प्रोटॉन का मास आ जाएगा, जो कि गलत है. प्रोटॉन मोशन में करता ही नहीं है, हमने एज्यूम किया है. क्लियर? एज्यूम किया, ये नहीं कि कल वो कंफ्यूज हो जाना. क्लियर. सो यानी जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, हमने एज्यूम किया उसी स्पीड से क्या जा रहा है, प्रोटॉन. जस्ट ए जंक्शन. क्लियर. सो L इज द लेंथ ऑफ द वायर. इधर ये क्रॉस सेक्शन ज्यादा लफड़ा हो तो यहाँ बाबू लिख देना वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. कोई दिक्कत? So the area of cross section means this is the wire and this is the length of wire and A is the area of cross section of the wire. Clear? So you know current is flowing in the magnetic field means charge particles are flowing in the moving in the magnetic field, and if charge particles are moving in the magnetic field, there is a force acting on the charge particle, that is equal to F equal to Q V cross B. तो अगर हम इस लेंथ में जितने चार्ज वो फाइंड कर लें और इसमें पुट करें तो हमको मिल जाएगा. क्लियर? टोटल चार्ज फाइंड कर, एंड ऑल चार्ज पार्टिकल विल हैव सेम वेलोसिटी, ना? ऑल चार्ज पार्टिकल विल हैव सेम वेलोसिटी. तो ये सबके लिए सेम है. तो खाली अगर ये भी सबके लिए सेम है, दीज आर सेम फॉर
और मूविंग चार्ज पार्टिकल ना, तो टोटल चार्ज अगर मिल जाएगा इस लेंथ में कितना चार्ज है टोटल मिल जाएगा, तो इजीली फाइंड कर सकते हैं फोर्स ना। एक मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन में फोर्स कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख देंगे फोर्स मिल जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन में कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो जितने चार्ज हैं अगर उनसे मल्टीप्लाई कर दिस क्वांटिटी को, यू कैन इजीली गेट द फोर्स ना। तो टोटल चार्ज कितना होगा देख लो। सो इफ L इज द लेंथ, A इज द एरिया क्रॉस सेक्शन एंड N इज द नंबर डेंसिटी, N इज द number density, N is the number density, number of electrons per unit volume. Clear. So what? Total number of electron in this length will be what? Total number of electrons कितना होगा? N is the total number of electron. Total number of electron, and that is equal to volume into number density ना, number density. So volume is equal to what? A into L into N. This is the volume and this is number density. So what? N is equal to A L N. Clear? This is the total number of electron in the wire. So total charge will be what? Total charge Q is equal to N E is equal to N. N is what? अब कैपिटल N होगा ना बाबू, total number of electron into electronic charge. So what? ALNE. So this is the total charge. Clear? In this wire, and they are moving. So total force will be what? QV क्रॉस V. इधर ओके, इतना ही चार्ज है ना यार। मान लो यहाँ वाला चार्ज मोशन करेगा, यहाँ वाला, यानी यहाँ से यहाँ के बीच में all charges are in motion ना। So the amount of total charge in this length will be ALNE. Clear? So force will be equal to what? Force will be equal to Q की जगह ALNE and V cross V, and that's the same as ALNE VB sin of theta, and what? ANEAV LB sin थीटा लिखे तो कोई परेशानी है, अरेंज कर दिया। और ये क्या बात NEA I, because I is equal to NEAVD, तो VD का ड्रिल वेलोसिटी हमने यहाँ भी बोल दिया, कोई दिक्कत? सो I, so AF is equal to I LB sin of थीटा, I LB sin of थीटा। इधर ओके, सो लिखो, फिर आगे करवा लिखो। अब मान लो पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, तो वेलोसिटी इधर होगा, पॉजिटिव चार्ज है, कोई दिक्कत? एंड दिस इज थीटा, दिस इज डी, एंड दिस इज थीटा। तो फोर्स किधर लगेगा? फोर्स इज इक्वल टू V क्रॉस B। तो V किधर है? इधर है, और B किधर है? इधर। फोर्स किधर लगेगा? इनवर्ड ना, इनवर्ड। तो Q VB sin of थीटा V क्रॉस B, जिधर हो वेलोसिटी पहला वेक्टर उसको इधर करो और B की तरफ कर्ल करो, इनवर्ड। कोई दिक्कत? इनवर्ड। वेक्टर पढ़े हो सब ना? Clear? So this is the relation of force. So similar, think about this relation. F is equal to I L cross B. This is the relation. F is equal to I L B sin of theta. So you know direction of force is what? Direction कितना लग रहा था? इनवर्ड ना, इनवर्ड। तो इसका वेक्टर फॉर्म में किसे लिखेंगे बाबू? इसको लिख सकते हैं I L cross B, and L is a vector quantity. L is called the displacement length, and direction will be in the direction of current। क्योंकि देखो वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है बाबू? वेलोसिटी का डायरेक्शन उधर है जिधर करंट जा रहा है, तो इधर करंट उधर वेलोसिटी है। उधर ही अगर हम लेंथ ले लें तो क्या होगा? इसकी वजह से जो फोर्स है वही हो जाएगा। क्या L किधर है बाबू? इधर है ना, L का डायरेक्शन इधर लेना, तो L क्रॉस B इनवर्ड। इसके लिए V क्रॉस B इनवर्ड, और करंट डायरेक्शन इधर, तब भी क्या होगा? क्लियर? सो I V and L have same direction।
I have direction but it is a scalar quantity. I have direction but it is a scalar quantity. मैंने इसे वेक्टर नहीं डाला. Velocity and length are the vector quantity. So direction of L will be in the direction of current. Is that okay? And this is called the displacement length. This is called the displacement length. So this F is equal to I L plus B is the formula when B is uniform, means your conductor is in a uniform magnetic field. So B is uniform, clear, and L is the vector. So displacement length. अब displacement length का मतलब क्या समझते हो आप? Displacement length L, clear. This is the distance between two end point of the conductor and point of the conductor के दो एंड पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट लेंथ. मतलब ये आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. अंदर ये वायर लाइक दिस. तो ये जो दोनों एंड पॉइंट करंट इधर जा रहा, तो ये लेंथ जो है पूरा लेंथ नहीं लेंगे हम. कौन सा लेंगे बाबू? डिस्प्लेसमेंट लेंथ. सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट लेंथ. और डायरेक्शन किधर होगा? इधर करंट जा रहा है तो इधर डायरेक्शन में लेंगे. तो देखा, यानी जो दोनों पॉइंट पे ज्वाइन कर दो और किस पॉइंट से किधर करंट जा रहा वही क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट लेंथ का डायरेक्शन हो जाएगा. एंड मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ ज्वाइनिंग द पॉइंट एंड पॉइंट इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड. क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट लेंथ का, इसका जो दोनों एंड पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा दैट विल बी मैग्नीट्यूड. इधर ओके, इधर ओके. सो करो ये अच्छा, जो भी चीजें करवा रहा हूं ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए है. क्लियर? ये नॉन यूनिफॉर्म होगा तो ऐसा नहीं कर सकते. यूनिफॉर्म के लिए कीप दिस इन माइंड. यूनिफॉर्म के लिए सारा चीज होगा. अगर बाबू ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है और वायर ऐसा है सेमी सर्कुलर, इसका रेडियस मान लो r है. क्या है? तब कौन सा लेंथ लेंगे? ये 2r ले लेंगे. तो F इक्वल टू I L क्रॉस B होगा I L B sin थीटा. और L का क्या रखेंगे? 2r रखेंगे. तो F इक्वल टू I 2r B साइन ऑफ थीटा. कोई दिक्कत? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तब होगा. पर ऐसा कुछ है क्लियर? ऐसा कुछ वायर है, क्लियर, करंट इधर जा रहा है, तब क्या करोगे? मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म में तो ये वाला लेंथ लेंगे. क्या लेंगे? मान लो ये L1 है, ये L2 है और ये L है, तो हम लेंगे B इक्वल टू F इक्वल टू I L क्रॉस B. ठीक है? तो क्या होगा बाबू? I L B साइन थीटा. ये वाला लेंथ लेंगे तो I L B साइन थीटा. कोई दिक्कत? ये वाला लेंगे. ठीक है? डायरेक्शन किधर लगा? इधर. अब फोर्स किधर लगेगा? अब मान लो कि फोर्स किधर लगेगा? अब फोर्स किधर लगेगा बाबू? अंदर. यानी रिजल्टेंट फोर्स दोनों बार किधर लगेगा? इधर. आएगा समझ? कि दिक्कत? या ये भी कर सकते हो कि इस पे फोर्स फाइंड कर लो, इस पे फोर्स फाइंड कर लो. दोनों का क्या करना पड़ेगा तुम्हें? वेक्टर सम ले करना पड़ेगा. आएगा समझ? तब फिर रिजल्ट उतना ही आएगा जो ये देगा. इस पे फोर्स फाइंड करो, इस पे फोर्स फाइंड करो और वेक्टर सम लो, इसी के इक्वल आएगा. क्लियर? कर सकते हो तुम. ठीक है? ये हो गया. ऐसे कोई दिक्कत? अगर मान लो कि ऐसा कुछ है इसमें ट्रायंगल बना है. क्या बना है? करंट इधर जा रहा है, तब क्या होगा? टोटल लेंथ, टोटल फोर्स क्या होगा? इस पे 0 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि IF इक्वल टू I L B साइन ऑफ थीटा. ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट लेंथ है. क्या है? यानी डिस्टेंस बिटवीन टू एंड पॉइंट. इसमें एंड पॉइंट है कहीं? नहीं है. ये ऐसे भी देखोगे तो क्या होगा? इस पे इधर फोर्स लगेगा, इस पे इधर नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0. अलग लेंथ पे फोर्स फाइंड करोगे, उनका वेक्टर सम लोगे तभी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा. कोई दिक्कत? अगर सर्किल है और वो मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्म है तब भी क्या होगा? फोर्स 0 हो जाएगा. कोई दिक्कत? यानी इफ देयर इज ए क्लोज्ड लूप, if there is a closed loop in a uniform magnetic field, then F will be 0.
क्लियर, वेक्टर सम लेके करोगे सेम रिजल्ट आएगा। क्लियर, नाउ वैल्यू इफ योर कंडक्टर इज इन दी, इफ योर कंडक्टर, चलो लिखो इसको, करेक्ट carrying conductor in a non-uniform magnetic field. So B is non-uniform. B is non-uniform. हो सकता है अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग मैग्नीट्यूड है, अलग अलग डायरेक्शन है, और इसमें कोई कंडक्टर है, यानी यहाँ का सबका क्या अलग अलग है, और करंट आई जा रहा है, तब फोर्स होगा बाबू, वो डीएफ लेंगे, छोटा सा एलिमेंट लेंगे, उससे फोर्स फाइंड करेंगे, क्योंकि फॉर ए स्मॉल एलिमेंट डीएफ योर बी विल बी एज्यूम टू बी कांस्टेंट ना। क्लियर, सो डीएफ इज इक्वल टू आई डीएल क्रॉस B. Clear? So total force F will be equal to integration dF, which is equal to integration I dl cross B. कोई दिक्कत? इसके केस में क्या होगा कि बाबू dl डिस्प्लेसमेंट लेंथ नहीं लेंगे, ये है ना, ये मत अप्लाई कर लेना। जैसे ये ऐसा कुछ है, इधर ये कंडक्टर एंड दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कंडक्टर लाइक दिस, ये L1 है, ये L2 है, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करके ये जो फार्मूला F इक्वल टू I L क्रॉस B, L B साइन से ले रहे हो, जो कि ये लेंथ ले लिया, दोनों एंड पॉइंट के बीच का लेंथ, करंट इधर जा रहा है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि अलग अलग इस पे हो सकता है फोर्स क्या होगा, कम बेस लगे, इस पे क्या होगा, कम बेस लगे, तो ये रूल नहीं अप्लाई कर सकते, कोई दिक्कत। अब क्या होगा, अलग अलग लेंथ पर फोर्स फाइंड करके और फिर उसके वेक्टर सम लोगे। क्लियर, वो पहले वाला मेथड लगाना पड़ेगा, यानी कि अलग अलग एलिमेंट लिया, अलग अलग फोर्स फाइंड किया, फिर उनका वेक्टर सम दिया। क्लियर, ये रूल तब वैलिड है जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा तब, कोई दिक्कत। इफ दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड देयर इज ए क्लोज्ड लूप है बाबू, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्लोज्ड लूप है, तब यहाँ फोर्स क्या होगा, नॉन जीरो होगा, क्योंकि हो सकता है इसको फोर्स ज्यादा लगे, इसको कम लगे, इस पे ज्यादा लगे, तीनों साइड पर अलग अलग फोर्स लगेगा तो उनका सम जीरो थोड़ी होगा। उसके बाद ये नॉन यूनिफॉर्म है तो हो सकता है डायरेक्शन अलग अलग हो मैग्नेटिक फील्ड का, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अलग अलग होगा, तो ये रूल यहाँ अप्लाई नहीं होगा। आ रही बात समझ? हाँ, नॉन यूनिफॉर्म के लिए हमको इसी फॉर्मूले से डील करना पड़ेगा, F इक्वल टू I dl क्रॉस D। इधर ओके। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द डायनामिक्स ऑफ मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड, डायनामिक्स ऑफ, दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, डायनामिक्स ऑफ moving charge in a magnetic field. This is our next topic. We will discuss tomorrow. So, bye.